Hello everyone, my name is Anshika Rathi and congratulations for completing your syllabus if you have completed it by now. And अगर आपका syllabus अभी भी complete नहीं हुआ है, so don't worry, watch out all my videos and you'll be able to complete your syllabus. Okay? It's the video is for all the people who have completed the syllabus 70, 80, 90 or even 100%. Congratulations to you. It's a big milestone to complete your syllabus by this time. Okay? But now the real game begins, that is revision, your right, everything that is coming up, and your boards are very soon. So without any further ado, let's get into the video so that you don't waste your time. Okay, revise strategically. Number one point that we have is revise strategically. Like for the higher weightage chapters, you have to complete the higher weightage chapters first. Okay, so that you can acquire more and more marks. और फिर जो low weightage वाले chapters रह जाते हैं and you know the chapters जिसमें like वो hard है तो आप उसको अभी के लिए लीव करो और उन पे कम ध्यान दो. लेकिन high weightage chapters और जो chapter easy है आप कर सकते हैं, so ज़्यादा से ज़्यादा marks acquire करने का try करो. Okay, so first you have to do it कि आपको revision करना है strategically. बहुत ज़्यादा smartly आपको अब करना होगा because it's the almost the end of the year. Okay, yeah. Then we have second, practice previous year questions. At least like previous 10 years के paper you have to solve them. Okay, so you have to solve at least 10-year paper, and if you're not able to do them, so you can do 5 or 8 even. Okay, yeah. So time yourself. Yeah. So like 3 hour का paper आपका होता है boards में, and you will be getting time for your reading time and etc. But you have to complete when you are practicing previous year questions. You have to time yourself with 2 hours and 40 minutes or 2 hours with 30 minutes, so that you can use that extra 20 minutes or 30 minutes that you are leaving for yourself during the board exam. अगर कोई tough question आपका रहता है and आपको उस time period में आप complete कर सकते हैं. So अपने आप को ऐसी आदत डालो कि आप 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर चुके हो. ओके, या सो ऐसे 4-5 पेपर सोल्व करो अच्छे से and you will be able to do it. एंड फिर जो क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़े हैं, जो रिपीटेड सबसे ज्यादा आपको लगे हो कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर तो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, 3-4 बार इस चैप्टर में मैंने देख लिया, उनको हाईलाइट करो और एंड टाइम में फिर जब आपके बोर्ड्स होंगे, उनके गैप डेज होंगे, उनमें उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना. देन द थर्ड पॉइंट इज दैट इज लाइक फोकस ऑन वर्क ऑन योर वीक एरियाज. ओके, या आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज. जो भी आपके वीक एरियाज है जिसमें आपको लाइक टफनेस फील होती है और आप नहीं कर पा रहे हो, उनको आइडेंटिफाई करो, उन पर काम करना चालू करो अभी फिलहाल. ओके, या अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एबल टू सोल्व एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर्स ऑफ मैथ्स और फिजिक्स, सो 10 to 15 न्यूमेरिकल्स ईच चैप्टर यू कैन सोल्व. ओके, वही क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं. सो या ओके, देन थर्ड इज रिफाइन द राइटिंग स्किल्स. अपनी राइटिंग स्किल्स को रिफाइन करने का ट्राई करो. वर्क ओवर योर राइटिंग स्किल्स, हाउ यू विल बी एबल टू प्रेजेंटिंग योर आंसर्स. Highlight the key points, the keywords in the questions. Bullet points में answer लिखो rather than the big paragraph one. Okay, teacher will be giving you more marks over the bullet points. अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है 6 पॉइंट्स लिखो, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स लिखो. So that is a great strategy from my end. Okay, you have to follow this. Then we have the next portion that is focus on mock test. अब फिर mock test लगाने का ट्राई करो, एटलीस्ट 5 से 8 mock test लगाओ, 2.5 घंटे की सिटिंग, सो दैट आपको वो फेमिलियरिटी मिले, आपको वो एनवायरमेंट क्रिएट कर सके आप बोर्ड वाला अपने घर पे ही, एंड यू विल नॉट फील एनी हेजिटेशन और एनी एंजाइटी ड्यूरिंग द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स. ओके, या सो क्या करो, अपनी अपने पहले बैठे हो आप 2.5 घंटे में आपने पेपर सोल्व करा, उसके बाद गलतियां जो हो रही है, गलतियां होंगी डेफिनेटली. सो उसके बाद पेपर सोल्व करने के बाद उसे अच्छे से चेक करो, खुद से ही करो अगर नहीं टीचर आपको मिल रहा है कोई चेक करने के लिए. रिव्यू योर मिस्टेक्स, पहले अपनी मिस्टेक्स को देखो कहाँ गलती है, एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स. ओके, अब वो पोर्शन जो आप वो क्वेश्चंस, वो पोर्शन जिसके आप आंसर नहीं दे पा रहे थे, बुक पे वापस जाओ एंड यूट्यूब खोलो, वीडियोस देखो और उस पोर्शन को कंप्लीट करो. ओके, वो चीजें सीखो जो आपको नहीं आती है. अभी जो आती है वो तो आप ऑब्वियसली कर ही लेंगे एग्जाम में. ओके, सो या दैट इज गोइंग टू बी द थिंग. द लास्ट थिंग इज stay healthy and positive. Okay, you have to stay healthy. Okay, like you have to focus on your sleep cycle, on everything. Okay, do not deduct your skill like sleep hours. ये मत सोचो कि दीदी ओके मैं 4 घंटे सो लेता हूँ, 3 घंटे में 16 घंटे पढ़ूंगा. ओके, दिस विल डिक्रीज योर कैपेसिटी टू स्टडी ओनली एंड विल नॉट गिव यू एनीथिंग. ओके, सो आप अपनी स्लीप साइकिल पे डेफिनेटली फोकस करो कि आप ज्यादा से ज्यादा घंटे सो, लाइक 6 से 7 तो नॉर्मली सो, एंड
लाइक जो वो होता है ना कि प्रोडक्टिव आवर्स निकालो और रात में पढ़ाई करो, अगर कर पा रहे हो। सुबह को करना है, सुबह करो। यू कैन डू एट एनी टाइम बट यू हैव टू स्टडी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द रियली एंड। और अगर बाद में कुछ भी चीजें छूटती हैं इस टाइम के, हमने पूरा साल तो पढ़ा नहीं और अब एंड में आके भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, सो फिर बहुत रिग्रेट होगा। ओके, सो या, और अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो एंड यू आर फेसिंग एनीथिंग, एनी डाउट इन इवन science maths की question भी you want me to solve or something like that, you can tell in the comment section and I will be replying to that. Okay, so yeah, that's all for today's video. I hope you liked it and अब से like you will be getting regular videos. Okay, so videos will be like regular on alternate days, or maybe I'm thinking to start a series or daily series. Okay, because now my exams are over, so I can almost make videos every day. So it will be great if you could tell me or suggest me anything you want to tell or like that. So yeah, thank you so much and watch all the videos and take notes and stick to that. Okay, yeah, so abhi padhte raho. Bye bye.